सॉरी। प्लीज आ जाइए, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया स्टैंड का, इसलिए। हेलो हेलो मानसा, सॉरी वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया स्टैंड का, कैमरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। अगेन हम लोग को वर्क स्टेशन पर चले जाते हैं। सब लोग जुड़ जाइए प्लीज। हाय मानसा, can you send a message in the group that live has started again? Mansa, please. In WhatsApp group, please tell. Hi, Sri Vidya, Lasya. Lasya, can you give a message in the group that live has started, please, again, so that they all can join, will join. Some problem has happened with my cameras. Yes, hi everyone again. प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए सबसे। फिर से मैं आपको बताती हूँ, वो तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ना, क्या क्या गोंद ट्राइब क्या है, गोंद पेंटिंग क्या है। हाय रोशनी, थैंक यू लाशिया। हाय नलिनी जी, अगेन हाय एवरीबॉडी। Is my workstation visible? ఇక్కడ ఉంటున్నామంటే today I have getting some problem with my stand. Okay, now is it visible now? Right. So today we are going to learn these type of figures
some figures, okay, and just I will tell you some basic figures. Then we will go to our painting, okay. See, one bird, if you want to draw some one bird, yes, sitting bird or standing bird, see, then just is it visible? Just they draw a shape like this, a round, they will take a circle and just take like this. Okay, welcome everyone again. See, for a bird which is standing like this, they take one circle and then these two curves, okay, as neck. After that, there will be their wings like this. See, it is simple. A beak, and they will have a crown of the bird, right? It's very simple design. Like this they draw. There is no hard and fast rule that its bird should be like this, or bird should be like if we are doing a flying bird, they take a shape of like fish, okay. Right, a fish shape they take like this, see, then two wings, and for face they do one circle. Like this they do, okay. And they do like some animals they do, like elephant we are doing. There is no hard and fast rule that the elephant should be the same texture or the shape, okay. Like this they do. See, like this. So it is hi Nitya. So like this you can draw your own freehand Gond painting drawings, okay. So there is no hard and fast. You have seen, already seen, like on a branch, if you want to put have one bird, then what they do, like this, a curve they will draw, then see, just like a D, okay, then a circle for the head, a V for the mouth, beak, and here also a triangle for the tail, and here the double line they draw. And in this we don't need any double lines for anywhere, okay. Only you have to draw like this. So it's upon you that how which type of animals or which type of to do. So by that you can decide how where you want to do, where you have to put these birds, where you have to stand. And there is also there is no hard and fast rule that
a bird is bigger than any animal is also okay for them. Okay, if elephant, I draw a bird and animal of equal size. If I draw a bird and animal of equal size also, it is okay for them. Okay, so today we are doing this painting. I have already given you the picture na. Okay, so we are starting today with this, and I will also show you the dots. Like this they are using, we have to put dots. Okay, and lines like one, like this, standing line and sleeping line, they are using for decorating these animals. Okay, and they use very vibrant colors for these pictures to paint. Okay, so, and these are the basic you can see na, or I have to is it okay now? Right. So I am taking a brown for the stem. Right, for the stem I am taking brown. If you have any doubt, please ask. कोई डाउट हो रहा है तो बोलिए. देखिए, गोंद ट्राइब जो हैं वो अपने घर पे ये सारे कलरफुल पिक्चर्स अपने घर के दीवारों पे बनाते हैं. मैं एक बार फिर से हिंदी में सारा रिपीट कर रही हूँ, करते करते आप देखते जाइएगा. और जो अपने घर पे डेकोरेट करते हैं, गोंड ट्राइब जो मध्य प्रदेश में रहते हैं ज़्यादातर. ठीक है, तो दे आर द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ आवर इंडिया. ओके, तो ये जब अपने घर को डेकोरेट करते हैं तो वो ज़्यादातर गोंद ट्राइब जो हैं, जो भी ट्राइब हैं, एक्चुअली जो भी ट्राइब हैं, वो लोग ट्राइब्स को ज़्यादातर नेचर से बहुत प्यार होता है अपने, क्योंकि वो लोग रहते हैं धरती माँ की गोद में. हम लोग सब भी रहते हैं, हम लोग को भी होना चाहिए, लेकिन वो जो रहते हैं अपने धरती माँ की गोद में, तो वो लोग को नेचर से इतना प्यार है कि वो लोग जो भी अपना डेकोरेट करते हैं वो नेचर को ही डेडिकेट करके डेकोरेट करते रहते हैं. तो हम लोग जब ये वो लोग जब बनाना स्टार्ट किए ये ला, तो कि एक ट्री बनेगा, एक उनका ट्री जो है ऑस्पिशियस ट्री है, क्योंकि उसका सारे चीज़ें वो लोग यूज़ करते हैं. फ्रूट्स यूज़ करते हैं, लीव्स यूज़ करते हैं, ब्रांचेस यूज़ करते हैं. तो वो लोग जरूर डिपिक्ट करते हैं इसको, ये गोंद के महुआ ट्री बोलते हैं इसको. ठीक है, तो ज़्यादातर उनके पेंटिंग्स में आप लोगों को महुआ ट्री मिलेगा दिखने के लिए. राइट, तो महुआ फ्रूट्स, महुआ ट्री. और ऐसा नहीं है कि वो उसको एक कलर, जो कलर उनका होता है वही कलर से वो लोग करते हैं. तो अपना अपना कलर है, वाइब्रेंट कलर्स कोई भी वो लोग यूज करके हम लोग माने कलरिंग कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर वही कलर है, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज करते हैं वो लोग. आप भी ध्यान से कीजिएगा, आप अगर कर रहे हैं मेरे साथ, नहीं तो आप लोग देख के बाद में भी कीजिए.
कितना सिंपल है देखिए। एक छोटे छोटे मैंने पिक्चर्स को डिपिक्ट करके अपने घर को सजाना, ठीक है। तो ये आजकल तो मॉडर्न बेडरूम्स में, ड्राइंग रूम्स में सजावट की चीजें भी बन गई हैं। इवन लोग अभी दीवार पे बड़े बड़े पेंटिंग्स भी बनवा रहे हैं अपने घर में अंदर, ठीक है। लेकिन वो लोग बाहर के जो गोंद ट्राइब्स हैं वो अपने घर के जो मिट्टी से बनते थे उसके ऊपर वो लोग इसका यूज करते थे। एंड दे यूज नेचुरल कलर्स, जैसे कि पत्थरों से वो लोग काम करते थे। पत्थर के से तोड़ के उसको उसमें मिला के उसको कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स उससे ही लाते थे। पत्तों से लाते थे, फ्रूट से लाते थे, तो वो नेचुरल कलर्स यूज करते थे। अभी हम लोग के पास तो नेचुरल कलर्स नहीं होगा, इसलिए हम लोग ये कलर्स यूज कर रहे हैं। कस्टमाइज हो गया है अभी, ठीक है। इज देयर एनी क्वेश्चंस, प्लीज यू कैन आस्क। यहाँ पर तक अगर कि आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि क्या कहीं पर कुछ डाउट है तो। आप मैं यहाँ पर ब्राउन कर रही हूँ, लेकिन ना आप अगर चाहें तो ये ब्राउन नहीं होके डार्क ग्रीन भी बना सकते हैं इसका ब्रांचेस। ये आपका आर्ट वर्क के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा कलर लेना चाहिए। डार्क कलर, डार्क ग्रीन लेना चाहते हैं, इससे ज्यादा डार्क ब्राउन लेना चाहते हैं, आपका मर्जी। देखिए मैं बात नहीं कर रही, मैं अपना ध्यान दे रही हूँ, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगी। प्लीज आप पूछते रहेंगे तो ही मेरे को पता लगेगा कि आप को समझ में आ रहा है कि नहीं। आप जब भी काम कर रहे हैं तो ध्यान से एक ब्रश का ध्यान रखिएगा और ज़्यादा वाटर मत मिक्स कीजिएगा इसके एक्रेलिक कलर्स में। समझ में आ रहा है ना सबको? और इसमें ना कोई शेडिंग नहीं होता है, बस डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज करते हैं। एक बर्ड में भी 3-4 डिफरेंट कलर्स, मैंने एक अगर आपने बनाया तो बर्ड, तो उसमें भी 4 डिफरेंट कलर यूज करके ही इसका बनता है, कलरिंग देते हैं।
ये हम लोग के आजकल ना हम लोग देखेंगे कि इसका स्टोरी बुक्स भी बन रहा है बच्चों के लिए। इतना सुंदर सुंदर है स्टोरी बुक्स। इससे मैंने ये बना के इससे स्टोरी मैंने एक स्टोरी लिया और उसका भी हम लोग बना के कर सकते हैं। तो मैंने मेरा ब्राउन हो गया है। मैं अभी हाय अपर्णा। Aparna, we are doing this Gond painting. See, I have done this branch. I have already given you this picture now. So I have done this part. So हम लोग क्या करेंगे अभी? देखिए ये जो बर्ड्स हैं हम लोग का ये पार्ट एक, ये पार्ट एक, ये पार्ट एक, ऐसे करके हम लोग ले सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये पीकॉक है तो पीकॉक कलर में ही रहेगा। सॉरी व्हाट, एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा गला ठीक नहीं है मेरा। सो देखिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर लेके हम लोग बना सकते हैं। तो मैंने अगर इसका बॉडी बनाया है ऑरेंज, हाय कैंसी। देखिए ऐसे अगर बॉडी बना रही हूं मैं ऑरेंज लेके, इसका हम लोग फेस बनाएंगे कुछ और कलर से, और इसका जो ये विंग्स हैं वो हम लोग बनाएंगे किसी और कलर से। तो कंप्लीटली हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हम लोग यूज कर सकते हैं। इवन व्हाट कैन यू डू ना, कि जैसे कि ये नेक तक आप एक कलर ले सकते हैं, आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना, ये नेक तक एक कलर ले सकते हैं और ये बॉडी अलग कलर ले सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जहां जहां आपको लेना है आप ले लीजिए ये वाला ऑरेंज, जैसे कि मैं यहाँ पर भी लूंगी। दिखाई दे रहा है ना आपको? फिर मैं उसके फेदर में लूंगी ब्लू। देखिए इसका फेदर मैं ले रही हूँ ब्लू। तो अपना मर्जी से आप कलरिंग का ले सकते हैं। जैसे कि मैं बर्ड का बॉडी भी ले रही हूँ ब्लू, ठीक है। तो आप लोग का मर्जी, आप कौन सा कलर यूज करना चाहते हैं। देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल।
जो हम लोग का कलर लेने का नहीं, इसके ऊपर जो हम लोग डिजाइन करेंगे ना, वही अभी हम लोग के लिए। हाय उर्वशी जी। दिखाई दे रहा है ना? तो ये मैंने ले लिया पिंक। वाइब्रेंट कलर्स यूज करना है, ऐसा नहीं है कि अगर ये इवन अगर आपका ये है क्रो है तो आपको यूज नहीं करना है ब्लैक, ठीक है? तो उसमें भी वो कलरफुल ही दिखाते हैं। जैसे कि अगर क्रो कौवा और मिट्टी सही में इसमें इतना कलरफुल रहता है। ये अगर आप देखेंगे कहीं पर खोज के देखिएगा, इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल है इसका डिपिक्शन जो कौवा। और ये आप सोचेंगे इतना कलरफुल भी हो सकता है कौवा, ठीक है? जहां जहां पर आपको ये यूज करना है आप यूज कर लीजिए। ये वायलेट यूज करेंगे। और वो उसके ऊपर जो लाइंस एंड ये हैं, इधर आप ब्लैक से कर सकते हैं, उसके ऊपर आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज करके भी कर सकते हैं। ऐसा कोई रही है कि खाली ब्लैक से करना है या फिर इसी कलर से करना, वाइट से ही करना है, ठीक है? आपका मर्जी है। उसको भी लाइन एंड डॉट्स थोड़ा अगर डार्क कलर्स है तो उसके ऊपर लाइट कलर्स यूज करके कीजिए, जैसे येलो, तो बहुत सुंदर दिखेगा। हाय दीपा जी। तो आज हम लोग सीख रहे हैं गोंद आर्ट। गोंद आर्ट जो है एक बहुत ही बड़े, जो हम लोग के इंडिया में सबसे बड़ा ट्राइब है, गोंद ट्राइब, उनका है ये आर्ट फॉर्म। वो लोग अपने नेचुरल कलर्स यूज करके वो लोग करते हैं। आजकल तो सब यही कलर्स यूज कर रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि किसी इवन अभी साड़ीज के ऊपर भी, दुपट्टे के ऊपर भी ये लोग करते हैं ये सब। किसी को कोई डाउट है तो मेरे को पूछ सकता है।
रेड कलर यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर विंग्स के लिए। टोटली आपका चॉइस है कौन सा कलर्स कहाँ पर यूज़ करना है। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होने चाहिए, तब आपका पेंटिंग बहुत कलरफुल आएगा। यहाँ पर मैं येलो ले रही हूँ, छोटा सा पार्ट है थोड़ा सा। ये जब कंप्लीटली सूख जाएगा तभी हम लोग इसके ऊपर वो फाइन काम कर सकते हैं, इसके ये बॉडी के ऊपर। और एक याद रखिएगा, इसके ऊपर फिर से आपको करना पड़ेगा ब्लैक आउटलाइन, फिर से करना पड़ेगा। कंप्लीट होने के बाद फिर से आपको ब्लैक आउटलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। कहीं पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो पूछ सकते हैं। ये हम लोग एक्रेलिक कलर यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी ही सूखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हम लोग को वो लाइंस एंड डॉट्स लगाने के लिए 0 नंबर्स का बस ब्रश चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग ये महुआ ट्री का जो ये फ्रूट्स हैं, इसको भी हम लोग करेंगे। एक एक हम लोग बनाएंगे येलो से। येलो का ना ऊपर में देंगे और नीचे में देंगे रेड, ठीक है। मैंने येलो डाल दीजिए पूरा एक तरफ, एक येलो होगा एक ऑरेंज होगा, ऐसे करके।
हाय कल्पना जी। ऐसे हम लोग फ्रूट्स बनाएंगे। इसका ये महुआ फ्रूट्स है। और इसके बगल में जो खाली मैंने छोड़ा है एक एक, उसको हम लोग मैं ऑरेंज बनाऊंगी। एक्चुअली बहुत सुंदर लगता है ऑरेंज एंड येलो का कॉम्बिनेशन। देखिए कितना सुंदर दिखने लगा है। बाद में हम लोग बीच बीच में एक ग्रीन का लीव्स भी डाल देंगे। मैंने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया, लेकिन ग्रीन्स के लीव्स भी डालेंगे। आप ये कहीं पर भी बना सकते हैं, जैसे कि अपना बुक कवर है, हाँ, डायरी है। कितना सुंदर दिखेगा अगर ऐसे वाइब्रेंट आप बनाएंगे। प्रोजेक्ट्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चे हैं तो अपने प्रोजेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं बना के। नो नीड टू फॉर दिस पेंटिंग, मैंने ये पेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से स्केच पेन्स और ये सब भी यूज़ करके आप बना सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए यहाँ पर। जब तक ये खत्म होगा आप देखेंगे बहुत सुंदर बनेगा। और काम करते सर में आप धीरे धीरे कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। क्या कहीं हड़बड़ी में मत कीजिएगा। आराम से करेंगे तो बहुत सुंदर निकल के आएगा। देखिए मैंने यहाँ पर जैसे इसका सर हेड लिया येलो, नेक लिया ऑरेंज और बॉडी पार्ट लिया वायलेट। ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। एक ही कलर होना है ऐसा नहीं है।
वो लोगों का यही एक बहुत अच्छी बात है कि वो लोग माने ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उनका कि यही कलर यूज़ करना है। एक्चुअल ट्राइबल पेंटिंग्स में सब में यही बहुत खास बात है कि हम लोग कोई भी खाली थोड़ा थोड़ा उनका जो ये होता है माने टेक्निक्स होते हैं उसको बरकरार रखते हुए हम लोग अपना चॉइस से कैसे भी बना सकते हैं। मैं ये जो गिलहरी है इसको मैं लाइट पिंक लेती हूँ, लाइट एंड डार्क पिंक थोड़ा सा लेके बनाती हूँ। दिख रहा है ना आप लोगों को? ये रैबिट है, तो रैबिट तो वाइट कलर में होता है। आप लोग वो सोचेंगे कि ये मैडम क्या कर रही हैं, लेकिन ऐसा मैंने कहा पहले से ही कि ऐसा नहीं है कि पीकॉक है तो वो पीकॉक का कलर ही यूज़ करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कैसे आप यूज़ करके उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर से ही यूज़ करके आप कितना सुंदर बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आधा लिया पिंक और थोड़ा सा वाइट मिक्स करके मैं कर दूंगी इसका लाइट पिंक। ठीक है, देखिए लाइट पिंक से बनाऊंगी इसको। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। देखिए मैंने वाइट और पिंक मिक्स किया तो ऐसे कलर आया। और ऐसा नहीं है कि शेडिंग होगा कुछ भी, कहीं पर कोई शेडिंग नहीं रहता इसका, डायरेक्ट कलर से ही करते हैं। ओके, तो अभी हम लोग लाइंस एंड डॉट्स और इन लोगों का बीक और ये बना के बनाएंगे। ठीक है, अभी ये हम लोग के लिए ब्राउन बना देंगे इसका लेग्स। आप येलो भी ले सकते हैं, कोई कलर का भी येलो ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा डार्क येलो भी ले सकते हैं, मैं ब्राउन से कर रही हूँ, थोड़ा लाइट कलर लेके। मे भी अभी 2-3 दिन लोग बिजी हैं शायद, मेरे को नहीं पता। फिर भी आप अगर नहीं कर पाएंगे तो भी संडे तक टाइम है, आप कभी भी देख के कर सकते हैं। और मैं सारे बीक को थोड़ा रेड कर देती हूँ। ऑलरेडी हम लोगों ने ऑरेंज किया हुआ है, सब बहुत यूज़ किया है, तो रेड मैं यूज़ करती हूँ बीक्स के लिए।
आप लोग कुछ बोलते रहिए, नहीं तो मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा है आप लोग देख रहे हैं समझ रहे हैं कि नहीं। राइट, तो अभी हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे लाइंस एंड डॉट्स से। उसके लिए हमको चाहिए 0 नंबर का ब्रश। ठीक है, 0 नंबर देखिए। राइट, टिप बहुत पतला होना चाहिए। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं काम। मैं ना डिवाइड कर रही हूँ हम लोग ब्लैक भी यूज कर सकते हैं, ब्लैक के डॉट्स एंड ब्लैक के लाइंस भी यूज कर सकते हैं। जब आप कलर ले रहे हैं तो ये थोड़ा सा ऐसे घुमाइए तो आपका कलर ब्रश के अंदर लोड होगा। ठीक है, कलर में रखिए और ब्रश को ऐसे घुमाइए। मैं ना डिवाइड करने के लिए मैं ऐसे लाइन डाल रही हूँ, ये पोर्शंस को डिवाइड करूंगी मैं। राइट, तो इसके बाद मैं इसमें अपना वाइट से, रेड से, ब्लू से, किसी से भी अपना काम कर सकते हैं, येलो से। ठीक है, देखिए मैं ब्लू ले रही हूँ और ऐसे स्ट्रेट लाइंस डालूंगी 1 2 ऐसे करके। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस पास पास में डालिए और पतला पतला। हाँ, मैं और एक बात भी बोलती हूँ कि अगर आप ऐसे ही बना रहे हैं, जेल पेन वेल पेन भी यूज कर सकते हैं। पेन ये जो डॉट्स एंड लाइंस के लिए। छोटे छोटे लाइंस डालते जाइए, सीरियल वाइज सीरियली डालना है, बगल बगल में। आपको मैं उठा के दिखाती हूँ, ऐसे लाइंस डालना है। ठीक है, तो वैसे ही डैशेस भी डाल सकते हैं आप। येलो ले रही हूं मैं, आप जब काम कर रहे हैं ब्रश को अच्छे तरह से एक के बाद एक इसमें डालेंगे तो वो इसका रंग उसमें चढ़ेगा। तो आप ध्यान रखिएगा। ऐसे मैं डैश डाल रही हूँ, येलो से। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिएगा।
राइट। तो अभी मैं यहाँ पर वाइट के डॉट्स डालूंगी। जब डॉट्स डाल रहे हैं तो माने सब एक जैसे होने चाहिए, ऐसे नहीं है कि यहाँ पर बड़ा छोटा, वो एक ही ध्यान रखिएगा। थोड़े से साइज का ध्यान रखिए, एक ही साइज के होने चाहिए ऑलमोस्ट। थोड़ा सा इधर उधर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन और रैंडमली कुछ नहीं करते हैं। ये जो है ये सीरीज की तरह ही जाता है। देखिए, राइट। इसके ऊपर बहुत सुंदर लगेगा, वाइट का डॉट डालते जाइए। ज़्यादातर डॉट्स एंड लाइन्स ही यूज करते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको फिश के स्केल्स दिखाती हूँ। ऐसे कर्व्स करना है। दिखाई दे रहा है ना आपको? राइट। देखिए, यहाँ पर 1 2 3 मैंने डाला, फिर से ऐसे कॉर्नर लेके कर्व्स डालते जाइए। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? और जितना भी क्रिएटिविटी है आपका इसमें डाल सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन, क्रिएटिविटी
सब आपका मर्जी। देखिए ये हम लोग के जो इंडियन आर्ट्स हैं इतने वर्सटाइल हैं हम लोग को, माने आजकल तो और अच्छे से अपने तरीके से बना रहे हैं। इतना सुंदर सुंदर हम लोग के, रियली वी आर वेरी ब्लेस्ड विद दिस कि हम लोग इंडिया में हैं और वी हैव सो मनी कल्चर्स हैं हम लोग के। हाँ, देखिए हम लोग अगर बनाते हैं, हम लोग हिंदू हैं फिर भी सारे फंक्शंस इतने सुंदर, जैसे कि क्रिसमस गया, हम लोग को क्रिसमस भी सेलिब्रेट हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग इतना ही एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग के इतने सारे आर्ट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स। और देखिएगा हर एक जाइएगा वहाँ के, इवन साड़ीज देखिए, साड़ीज में एक गांव में जाइए, वहाँ का अपना कल्चर है, अपना तरीका है साड़ी का, उसका डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सचर है। हाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ, इवन वेयर करने के लिए हम लोग जो पहनते हैं उसमें भी थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस हैं। तो देखिए कितना सुंदर कल्चर है। हम सब अगर ये सब मिलाएंगे तो हम लोग रियली वेरी ब्लेस्ड दैट वी आर लिविंग इन इंडिया विथ सो मेनी कल्चर्स, और इतने सुंदर आर्ट फॉर्म्स भी हम लोग को और कहीं नहीं मिलेंगे। मे बी दे हैव, मतलब नहीं, मैं नहीं बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा, लेकिन इंडिया के जितना तो मेरे को नहीं लगता कि कहीं होगा। इज इट राइट और रॉन्ग? प्लीज मेरे को एक थम्स अप दीजिए, एटलीस्ट कुछ तो बोलिए। देखिए, राइट, अभी इसके बीच में मैं एक एक डॉट डाल देती हूँ। इसको इससे भी डाल सकती हैं, फिर रेड से भी डालिए तो प्रोमिनेंट दिखेगा, आपका मर्जी। ऐसे पूरा जितना भी है, इवन ट्री को भी हम लोग को ऐसे ही बनाना है, लाइन्स एंड डॉट्स से ही सजाना है। ट्री का सारे ब्रांचेस और वो सभी भी हम लोग को वैसे ही सजाना है। आई डोंट नो लाइकिंग इट और नॉट, मेरे को कुछ नहीं बता रहे हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा है।
मैंने तीन तीन लिया है, इसमें तीन तीन करके लिया है। आप इवन ना इसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3D आउटलाइनर, मेरे को नहीं पता सबके पास है कि नहीं, मैंने इसलिए नहीं बोला, लेकिन 3D आउटलाइनर अगर है, 3D आउटलाइनर से भी ये काम कर सकते हैं। डिफरेंट कलर्स के मिलते हैं 3D आउटलाइनर्स, तो आप उससे भी काम कर सकते हैं। ये डॉट लाइंस, हाँ, आप कुछ तो बोलिए, कुछ थम्स अप कुछ तो दीजिए। देखिए ऐसे पूरा सारे को सजाना है, डॉट्स एंड मे भी आप लोग को लग सकता है थोड़ा सा क्लास, आई डोंट नो, यू आर फीलिंग लाइक इट इज़ ए बोरिंग और व्हाट, आई डोंट नो, लेकिन इट्स ए रियली वेरी 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 ब्यूटीफुल आर्ट। जब आप लोग करेंगे आपको पता चलेगा। ऐसे लाइंस डालिए, जो कलर जिसका कॉन्ट्रास्ट होगा उसको डालते जाइए, तो अपने आप वो ब्यूटीफुल बन जाएगा।
पहले मेरा थोड़ा सा स्टैंड का प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए आई डोंट नो कि लोग उसके लिए चले गए हैं, आई डोंट नो। आँख में वाइट डाल दीजिए। किसी के ऊपर भी बना सकते हैं, जैसे उस दिन मैंने आपको बताया था कैलेंडर, तो आप कैलेंडर को भी इससे आप बना सकते हैं। कैलेंडर के ऊपर का हिस्सा इससे कलर करके नीचे में कैलेंडर लगाइए। न्यू ईयर का अच्छा सा गिफ्ट बनेगा। आप गिफ्ट देना चाहें तो गिफ्ट दीजिए, आपके घर में लगाना चाहें तो आप घर में लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लाइन स्ट्रेट लाइन से कर रही हूँ। वाइट यूज कर रही हूँ, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। यहाँ डॉट्स डाल रही हूँ। डैशेस, इसको आप ब्लैक से भी कर सकते हैं, आपका मर्जी। ब्लैक जो मार्कर मैंने बोला था उससे भी आप कर सकते हैं। आप पूरा पेड़ बना के देखें, ऐसे ही बहुत सुंदर दिखेगा। मेरे को कोई काम मैंने जल्दी जल्दी में कुछ फटाफट करके मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मैं इसलिए स्लोली ही बता रही हूँ। हो सकता है कि घंटे में नहीं बता पाए मैं, क्योंकि थोड़े बड़े आर्ट हैं, इसका डिटेलिंग्स बहुत बड़ा बड़ा होता है, ज़्यादा होता है। तो अगर ज़्यादा डिटेलिंग्स हैं तो ज़्यादा टाइम ही लगेगा। और जब हम लोग बैठते हैं काम करने के लिए किसी भी ऐसे ड्राइंग के ऊपर या फिर ऐसे पेंटिंग के ऊपर, तो रियली बताती हूँ कि हम लोग को टाइम भी इतना पता नहीं चलता है कि अच्छा इतना टाइम हो गया। मे बी यू आर वेरी बिजी एंड हो सकता है
मैं एक काम करती हूँ, इस तरफ का पार्ट आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ और उस तरफ का पार्ट मैं बाद में आप लोगों को पिक्चर करके डाल दूँगी, ठीक है। आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मेरे को अभी पत्ते भी बनाने हैं इसके ऊपर, तो मैं वो सारे डिटेलिंग्स आपको डाल के दिखा देती हूँ। ये पेड़ के ऊपर मेरे को वाइट ही बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत अच्छा दिखता है। आप कोई भी कलर कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, आपका मर्जी। मेरे साथ कौन कौन कर रहा है? कैन यू गिव मी ए थम्स अप प्लीज? मैं इस तरफ का साइड का पूरा कंप्लीट करके दिखा देती हूँ और उस तरफ का साइड बाद में मैं आपको पिक्चर बना के डाल दूँगी कंप्लीट करके। बाय नाइट आई विल कंप्लीट दिस एंड गिव यू करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए इधर तक हम लोगों ने ऐसे बनाया, राइट। बर्ड का बनाते हैं, ये ला बर्ड रह गया है। डॉट्स डाल दीजिए ऐसे सारे को, जितने भी हैं वो सबको आपको सजाना पड़ेगा इसी डॉट्स एंड डैशेस से, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से, ठीक है।
डिफरेंट डिफरेंट कलर से भी आप डॉट लगा सकते हैं। देखिए मैंने ऐसे किया। लाइन से भी कर सकते हैं फेस पे। आपका मर्जी है, आपको कैसे सजाना है वो आपको देखना है। और मैं इस तरफ का पूरा कंप्लीट करती हूँ। जैसे कि मेरे को डार्क ग्रीन भी बनाना है तो मैं डार्क ग्रीन से लीव्स बनाऊंगी। सैप ग्रीन लीजिए, सैप ग्रीन से अच्छा लगेगा। ऐसे ही लीव्स डालिए बीच बीच में। लीव्स डालने से थोड़ा सा और इसका सुंदरता बढ़ेगी। सैप ग्रीन से बनाइए। किसी को कोई पूछना है तो पूछ सकता है। और भी आप चाहें तो और भी डाल सकते हैं लीव्स, आपका मर्जी। मैं कंप्लीट करके डालूंगी ये पिक्चर। और मैं ना इसका जो महुआ के फूल हैं, इसका जो डेकोरेशन है मैं ब्लैक के मार्कर पेन से आपको करके दिखाती हूँ। You can use also black marker pen for the आप इससे भी यूज कर सकते हैं ऐसे। सॉरी, देखिए ऐसे।
के जो फूल नहीं, ये हैं बस फल हैं, फल। दीज आर द फ्रूट्स ऑफ महुआ ट्री। ओके, देखिए ये ब्लैक मार्कर पेन है, CD मार्कर। मैं उससे इसके अंदर का डिज़ाइन बना रही हूँ। तीन, खाली ऐसे तीन ठो, दो ठो तीन ठो मैं डाल रही हूँ लाइंस, और ऊपर में मैं वाइट से डालूंगी इसका ऊपर में, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। इसका जो नीचे का ये है, तो इसको भी मैं ऐसे लाइंस डाल देती हूँ, फीट को। आप डॉट्स भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मार्कर पेन से थोड़ा इजी रहता है इसका आउटलाइन बनाने के लिए, बट आई प्रेफर टू डू विथ 000 ब्रश और 00 ब्रश। ब्लैक कलर, एक्रेलिक कलर से ही आउटलाइन बनाने से अच्छा रहेगा। अगर आपको आसानी होती है तो इससे भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाती हूँ आउटलाइन, इससे आप इससे फिर से एक बार आउटलाइन बनाइए। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, जब हम लोग एक्रेलिक कलर डाल देते हैं, फिर कभी कभी ये चलना बंद कर देता है मार्कर पेन। उस पे यहाँ पर चल रहा है, राइट। ऐसे फिर से डालिएगा। अगर मार्कर पेन आप ऐसे भी यूज़ किए होंगे अभी इसको आउटलाइन सारा बनाने के लिए, उससे भी आप डाल सकते हैं। ओके, और पत्ते जब सूख जाएंगे उसको भी हम लोग थोड़ा सा ऐसे डाल दीजिए, 3 ठो डॉट्स। तीन ठो 4 ठो डॉट्स डाल दीजिए इसके ऊपर वाले हिस्से में, बहुत सुंदर दिखेगा। ऐसे ब्लैक कलर का कलर लीजिए और पूरे में आउटलाइन ऐसे कीजिए। एक्चुअली मेरे को तो एक्रेलिक कलर से ही करना पसंद है। आप लोग चाहे तो ब्लैक मार्कर पेन से भी आउटलाइन कर सकते हैं, लेकिन आउटलाइन प्लीज़ कीजिए, तभी इसका सुंदरता बढ़ेगी। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जब कलर ओवरलैप होके आपके सारे जितने भी आउटलाइंस हैं वो लाइट हो गए होंगे, दिख रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत लाइट हैं। जब आप इससे करेंगे आउटलाइन ब्लैक से, तभी ही वो निखर के आएगा।
राइट। तो मैं एक करके एक बना के दिखाती हूँ आपको, ये वाला, इसका आउटलाइन डाल के देखिए कितना सुंदर दिखेगा। इसका बीक में भी आप डाल सकते हैं ऐसे डॉट डॉट डॉट। जब आप ब्लैक आउटलाइन डालेंगे तभी ही वो उभर के आएगा। सो प्लीज़ आउटलाइन जरूर डालिए, ब्लैक आउटलाइन पूरा होने के बाद। और ब्लैक कलर लेके डालिएगा, 000 ब्रश या फिर 00 ब्रश यूज़ कीजिए। देखिए तो मैं पूरा करके आपको भेजूंगी। दीज आर द टेक्निक्स, स्मॉल स्मॉल टेक्निक्स। जो छोटे छोटे डॉट्स हैं, डैशेस हैं, इसको आप याद रखिए। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड डॉट्स, दीज आर द कर्व्स वी कैन यूज़। सो आप लोग इसको ही याद रख के आप अपना बनाइए और आपके मर्जी के अनुसार आप ये जो कलर्स हैं ये आप चूज़ कीजिए। और मैं आपको ये पिक्चर बना के बाय नाइट आई विल पोस्ट इट इन द ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, होप यू ऑल लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच। बाय।